Hello students. Earlier we have discussed about the cell structure, how does a cell look and what does it consist. We have also discussed that first cell have been discovered by Robert Hooke in 1665. Today we will discuss that what are cells made up of. Cells are made up of cells organelles. Like our whole body is made up of organs, same like that, say is also made up of cell organelles. So today we will discuss the structural organization of a cell. You all know that what is a cell? The functional and basic unit of our life. It has a plasma membrane, cytoplasm and a nucleus. Nucleus is mainly found in eukaryotic cells and in case of prokaryotic cells, nucleoid is found. I hope that you have studied in class 8 that what is eukaryotic and prokaryotic cell. Moving ahead, once again I am going to explain it. The prokaryotic cells are the cells which lacks the membrane bound organelles, while in eukaryotic cells the membrane bound organelles are chiefly found. If we talk about nucleus, nucleus is very prominently clearly visible present in eukaryotic cell, while it is not clear, it is present in a thread like structure as a nucleoid in prokaryotic cells. Moving ahead, all cell organelles are mainly made up of three things. Means सारे के सारे सेल्स में थ्री थिंग्स ऐसे होती हैं जो कि एकदम कंपल्सरली प्रेजेंट रहेंगे एंड दीज ऑल आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. Firstly, we will talk about plasma membrane. Plasma membrane is the outermost covering of the cell. This is also called selectively permeable membrane. Why? Selective means when you select something, you don't go with everything, you select something. Same like that, this membrane allows only some materials to go through them. That's why the plasma membrane is known as selective permeable membrane. This helps in diffusion and osmosis, and it is composed of, or we can say made of, bilayer of lipid and protein. लिपिड और प्रोटीन की जो बाई लेयर रहती है उससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी रहती है. इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. लाइक जो सेल है, सेल से किसी भी चीज़ को बाहर जाने के लिए या फिर सेल के अंदर किसी मटेरियल को एंटर होने के लिए डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. Transport through cell membrane. The first and easiest way to the transport is the diffusion, which is the movement of liquid or gas molecule from a high concentration to low concentration until the substance is evenly spread. आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा होगा कि अगर आप एक जगह इंटेंस स्टिक्स जो अगरबत्ती रहती है, अगर आप इसे एक प्लेस पे जलाते हो तो इट जो इसकी स्मेल रहती है इट जस्ट स्प्रेड आउट थ्रू आउट द रूम. हाउ? क्योंकि जहाँ पे भी जब वो स्टिक्स आपकी जब बर्न आउट होती है, जलती है, उस कंडीशन में जो उसकी स्मेल रहती है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन हाई रहता है एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू मूव टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन एरिया. तो वो धीरे धीरे पूरे रूम में उसकी स्मेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ गैस. Diffusion, the net movement of particles from the area of high concentration to the area of low concentration.
And why does it possible? It is possible due to the random movement of particles. It's a passive process because it doesn't consist any kind of energy required. Okay. So the first process for the transport of material throughout the plasma membrane is diffusion. Moving ahead, if someone is asked that what is the definition of diffusion, then you will say the movement of molecules from the higher concentration to lower concentration is known as diffusion. Like oxygen, carbon dioxide, these all things go throughout the plasma membrane through the process diffusion. Diffusion in living organism, like when we respire or the food get digested in our stomach, all these things, the nutrients get dissolved into blood through the process diffusion. Now the process osmosis. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, उनमें बहुत ईजिली सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही मटेरियल्स पास इन होते रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. बट हायर एनिमल्स लाइक अस जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, देयर डिफ्यूजन एज वेल एज ऑस्मोसिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट. Now the question is, what is osmosis? Osmosis is the passage of solvent from a dilute solution through a semi-permeable membrane into a more concentration solution. अब से ध्यान दीजिएगा कि whenever we talk about osmosis, one thing will be consistently present and that is semi-permeable membrane. Osmosis की कोई भी definition semi-permeable membrane लिखे बिना कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए ध्यान से इस वर्ड को जरूर मेंशन कीजिएगा. ऑस्मोसिस इज द passage ऑफ आर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन. डाइल्यूट मतलब जहाँ पे वाटर क्वांटिटी हायर है, वहाँ से थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू अ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे वाटर क्वांटिटी लो है. ये जो मूवमेंट होता है that is known as osmosis. The diffusion of water across a semi-permeable membrane from a weak solution to a strong solution, or we can say from a dilute solution to a concentrated solution. Dilute मतलब यहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा पे अवेलेबल है, that dilute solution से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो वाटर का पैसेज होता है, जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, that is known as ऑस्मोसिस. इसका एक सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कोई बाथ टब में या फिर किसी कटोरी में अगर आप पानी लेके अपनी उंगलियों को उसमें थोड़े टाइम तक अगर आप डुबा के रखते हो, देन व्हाट हैपेंस, आवर फिंगर्स एब्जॉर्ब्स वाटर, और ये थोड़ी सी रिंकल्ड पड़ जाती हैं. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर है उसका मूवमेंट हो रहा है, वो डाइल्यूट ज़्यादा है. हमारे हाथ की जो मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली यहाँ से ज़्यादा वाटर उस समय पानी में अवेलेबल है, सो इट गेट स्प्रेड इनटू इट. ये इसके अंदर हमारे हाथों में ऐसे जाने लग जाता है और हमारे हाथ फिर ऐसे रिंकल्ड टाइप के हो जाते हैं. दिस इज ऑस्मोसिस. आपने देखा होगा कि जैसे कोई ड्राई फ्रूट है, उसको अक्सर पानी में सोक किया जाता है एंड देन दे ऑल गेट स्वॉलन अप. तो ऐसा कैसे होता है कि वो अचानक से स्वॉलन अप हो जाते हैं? इट हैपेंस बिकॉज जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन, मतलब कहाँ पे, वो जो पानी का जो हमने रखा बॉटल या फिर जो हमने पानी का बीकर रखा, यहाँ से उस ड्राई फ्रूट के अंदर जो यहाँ पे अभी लेसर कंसंट्रेटेड है, ये वहाँ पे मूवमेंट होता है. दिस मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस. एंड ड्यू टू दैट जितने भी ड्राई रेजिन्स या ड्राई फ्रूट्स हैं, दे ऑल गेट स्वॉलन अप इफ वी कीप देम इन वाटर फॉर सम टाइम. देन वी विल डिस्कस जब ऑस्मोसिस होती है, जब मैंने बताया कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली दो तरह के कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, हायर और लोअर.
अगर हम दो अलग अलग वाटर सोल्यूशन को ले रहे हैं या फिर दो अलग अलग कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा सोल्यूशन जो बनेगा, आप खुद सोचिए, अगर हमने दो तरह के लिक्विड को लिया है तो कितनी सिचुएशन हो सकती है। एक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, एक किसी एक का हाई रहेगा, बी का लो रहेगा, तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि ए का लो रहेगा, बी का हाई रहेगा। इस तरह से जो सोल्यूशन बनते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स जहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी। हाइपोटोनिक जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, ओके जैसे सेल के बाहर का जो सोल्यूशन है वो लोअर कंसंट्रेशन में है, सेल का अपना कंसंट्रेशन हाई है लेकिन सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है दैट इज लोअर। हाइपर जब सेल का जो कंसंट्रेशन है दैट इज लेस और जो उसके बाहर कंसंट्रेशन है दैट इज हाई, दैट इज नोन एज हाइपर सोल्यूशन। अब इसके लिए आप समझे कि दो डिफरेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो एक सोल्यूशन हमारा क्या है, जो सेल है उसके अंदर जो लिक्विड है या फिर प्रोटोप्लाज्म वगैरह है इनका कंसंट्रेशन, और सेल के ठीक बाहर जो एनवायरनमेंट है उसका कंसंट्रेशन, इसको कंपेयर करके तीन तरह के सोल्यूशन बनते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन when the concentration is higher inside the cell, और जो बाहर का सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन लो रहता है। जब बाहर का कंसंट्रेशन लो रहता है तो वाटर सेल के अंदर एंटर होता है, दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है सेल से, मतलब बाहर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन एकदम हाई है, देन देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर वो वाटर जाएगा, दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है दैट इज लोअर, और जो बाहर का सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हाई है, दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इस कंडीशन में वाटर सेल से बाहर जाता है, इट गेट आउट। आइसोटोनिक सोल्यूशन, जब सेल के अंदर और बाहर दोनों ही सेम वाटर कंसंट्रेशन है, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। कंपेरेटिवली आप इसे ही पढ़ सकते हैं। इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर विल गो इनसाइड द सेल, in case of hypertonic solution the water will go out of the cell, and in case of isotonic solution this will remain same, there will be no movement of water. So we have studied that osmosis is the mode of diffusion. It's a kind of diffusion where the water from the higher concentration goes through the lower to a lower concentration through a semi-permeable membrane. It is very important. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि मान लीजिए जो सेल ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर जो एक ब्लू ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है और उसके बाहर एक सोल्यूशन है और एक उसके अंदर सोल्यूशन है। अगर ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर के बाहर का कंसंट्रेशन 20% है और अंदर का कंसंट्रेशन 10% है, तो फिर सेल का किस तरह का सोल्यूशन सेल में है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक कि आइसोटोनिक, किस तरह का है, दैट इज़ द क्वेश्चन। और वाटर का मूवमेंट कैसे होगा ये आप मुझे बताएंगे। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल। टेक केयर अ लॉट, हैव अ नाइस डे।